हम लोगों की शादी it's been around 1 year and we live in Bangalore. So your total household monthly income is 5 lakhs. Cash in bank is 4L. Short-term deposits in the form of debt funds 45L. Gold is 7.3L. Mutual funds 20 lakh. Direct stocks 13 lakh. US stocks 2 lakh. RSUs 30 lakh. We have booked 2 houses now और उनकी combined value probably it's higher. So how do we actually manage finance so that we don't eat up our savings completely? जो भी AI से भी चल रहा है of course and lots of things happening. We don't know how the job market would look like 5 years down the line. So there is still that anxiety कि how do we make sure कि we are safe. Hello and welcome to a new episode of Fix Your Finance. Today I've got and today we'll discuss their finances and I will help them fix their finance. Hello guys, welcome to the show. Hello. Hello Anshuman, thank you for having us. Guys, tell me about yourself. हम लोगों की शादी it's been around 1 year and we live in Bangalore. We've been in corporate for about 5-6 years in total and we work as managers, we could say, at IT company. Since marriage, how are you guys managing your finances? Has the management changed? We had our individual accounts prior to marriage and even now we have our individual accounts, bank accounts, and we created a separate joint account where we pitch in like some amount of money every month and that account is solely for expenses. बाकी individual accounts से we do our own set of investments जितना we feel is we are able to do. So joint expenses are joint and investments are on an individual level, but starting from now you guys have joint financial goals. So essentially वो investments भी शायद वही goals के लिए है. Yeah. Let's start with your income and your expenses. So your total household monthly income is 5 lakhs. This is after tax. After taxes. Got it. तो टोटल डिस्पोजेबल मंथली इनकम आपका 5 लाख है. एक चीज़ हमारे पास जो नहीं है, पता नहीं उसका खर्चा बड़ा है कि नहीं. वी डोंट हैव टर्म इंश्योरेंस या ऐसा कुछ चीज़ अभी नहीं है. और जो भी इंश्योरेंस है दैट्स जस्ट कंपनी वाला इंश्योरेंस जो हमें देता है. हेल्थ इंश्योरेंस. या हेल्थ इंश्योरेंस. हाँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको अभी के अभी लेना पड़ेगा. यू हैव टू हैव योर इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्योंकि अभी जैसे आपने जॉब चेंज की, पुरानी जॉब वाले का इंश्योरेंस प्रोवाइडर कोई और होगा. अगर सेम भी होगा, अब आपकी जो नेक्स्ट कंपनी है उसमें आपका पॉलिसी मोस्ट ऑफ द टाइम स्पोर्ट नहीं होगा. हर इंश्योरेंस पॉलिसी के अलग अलग इलनेसेस के वेटिंग पीरियड होता है. एवरी टाइम यू स्विच योर वेटिंग पीरियड इज रीसेट. अच्छा. ऑल्सो यू सेट की फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, शायद रिटायर भी होना है. सो यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन की 45-50 में आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़े. इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस तो सही है, बट उसके साथ साथ आपके लोन्स भी आने वाले हैं, तो टर्म इंश्योरेंस को नेग्लेक्ट मत करना. फिक्स योर फाइनेंस के इतने कॉन्वर्सेशंस में एक कॉमन पैटर्न ये है कि ज्यादातर लोग आपके तरह ही टर्म इंश्योरेंस को नेग्लेक्ट करते हैं. मैं इतने सालों से बोलते आ रहा हूं कि एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग आपको ये 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदनी है. एक इंडिविजुअल हेल्थ insurance to protect your finances in case you fall ill, and a term insurance to protect your family's future in case something goes wrong. Term insurance, guys, is the most affordable way to protect your family in the worst times possible. आप दोनों को तो टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि आप लोगों के पास 2 घर है. लेकिन जिनके डिपेंडेंट्स नहीं भी है उनको भी टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी इंश्योरेंस खरीदोगे आपको उतना कम एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा. One of India's leading life insurance companies, Max Life Insurance, and one of India's leading banks, Axis Bank, have joined hands together to become Axis Max Life Insurance. तो अब भरोसा हो गया डबल. Axis Max Life का न्यू स्मार्ट टर्म प्लान प्लस से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको मिल सकता है स्टार्टिंग एट जस्ट 522 रुपए पर मंथ. Not just this, for salaried professionals like you too, with Axis Max's new smart term plan plus, you get a 15% first year discount. इसके साथ गाइज मिलता है स्मार्ट कवर, जिसमें पॉलिसी के पहले 15 साल तक 150% ऑफ बेस सम अश्योर्ड का लाइफ कवर मिलता है. जब आपके ऊपर ईएमआई, लोन्स और स्कूलिंग जैसे बड़े फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तब ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन काफी यूजफुल होता है. Whenever you are buying a life insurance policy, guys, you should always check the claim settlement ratio. It is the percentage of claims that the life insurer has paid out against the total number of claims received in a financial year. And Axis Max Life Insurance has one of the highest claim settlement ratio of 99.65%. And the best part, they have a 3-year claims guarantee wherein they strive to settle claims jald se jald.
इनका एक बहुत ही यूनिक स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट है, wherein if you exit the plan, all your premiums will be paid back 100%, that too completely free of cost. तो what are you guys waiting for? अगर आपके पास और आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, check out Axis Max Life Insurance. The link is in the description and get your term insurance, क्योंकि अब भरोसा हो गया डबल. एक्सपेंसेस पे देखते हैं. हाउसिंग रेंट स्लैश EMI 52,000. आपका खुद का घर है कि रेंट पे रह रहे हो? So we don't have any EMI running currently. Electricity 1100, outside food plus weekends 9,000, house help 3,000, fuel slash commuting 3,200. Is this via cabs, cars, क्या है? So we have a two-wheeler with us, तो उसके साथ ही like fuel का cost we do. Parents expenses 15,000, groceries 10,000, miscellaneous 2,000. Most of the numbers are fine. Like I can see that you are underspending in every single category, right? Like most of the newly married couple that I have met, they spend way more than this on gifting. They have to. They don't. The society does not leave them a chance. So Anshuman, actually here's a catch. While we are not spending a lot on gifting movies, I mean personally this is like a philosophy for us that we don't want to spend a lot on like materialistic gifts or so. Rather we want to spend more on travel aspect. So while shopping is like a little under control for us, but travel is like it compensates for the shopping aspect. Got it. And yeah, I mean, unlike most other females who are usually very shopping enthusiasts, I'm not one of those. I think shopping is gender agnostic. It's 2025. Right? So is travel one of your financial goals? One big financial goal? Yes, every year you could say one international trip और 2-3 within India कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है. And these are numbers based on the last 4 to 5 months के expenses, right? ऐसा तो नहीं है ना कि fix your finance में आने के पहले आप लोगों ने थोड़ा कंट्रोल किया अपने expenses और फिर बाद में ऐसे रोजी numbers है. नहीं, probably on average since 1 year it has been the case. So you are spending 1,00,000 rupees every month. Yeah. So the numbers, like expenses wise, you guys are spending less than 30% of what you guys earn. Like, and if we include your vacations, then it's just like north of 30%. So very nice, very nice. तो आपका जो पहला गोल है of achieving financial freedom at an earlier age, आपके savings rate से ही आधी चीजें solve हो जाएगी. Having said that, बहुत सारे new expenses अभी आने वाले हैं और उसको हम समझते हैं. Expenses है 1,00,000, अब बचते आपके महीने के 3,00,000. अभी तक आपके 3,00,000 बचते थे. How did you guys manage this 3,00,000 amount? Majority like जो भी अपना आता था, we started an SIP म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कुछ मंथली अमाउंट उसमें जाता है. और कभी कभी बीच में लाइक कोई स्टॉक if we like we put some lump sum amount in that, not too big but थोड़ा छोटा amount we try to put, because we are not in the know-hows of how direct stocks work, so we don't invest a lot. We are mostly heavily focused on mutual funds. और बाकी because our goal was also to buy a house, so we had parked most of our like fund in a like you could say debt fund. वहाँ पे हमने रखा था काफ़ी कुछ, तो we booked like one house Bangalore में और मुंबई में, तो that's the reason why we parked that amount in a debt fund. और वहाँ से like for one of the houses we paid our initial amount जो deposit करना होता है. For another it's still in a booking state. We haven't paid any amount, but that is coming up in near future. We don't know when, but pretty soon. We could say 2 or 3 months it could be that we have to give some amount for that new house too. Or actually that's where one of my major fears arise कि we have booked 2 houses now और उनकी combined value probably it's higher. So how do we actually manage finance so that we don't eat up our savings completely? We don't like kill our goal of financial freedom. Or basically everything is sorted. That's the major concerns. Fair. So you're saying that अभी जो भी पैसे बचते हैं वो आप म्यूचुअल फंड्स में ही SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? और जो कैश सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस था दैट इज बीइंग यूज्ड टू पे एन अपफ्रंट अमाउंट फॉर योर हाउस इन बॉम्बे. Yes. क्या आप बता सकते हो कि बॉम्बे का घर का प्राइस क्या था और मुंबई के घर का प्राइस क्या था? बॉम्बे का इट्स लाइक 1.3 CR और जो यहाँ पे है बैंगलोर वाला दैट इज अराउंड 2.5 CR.
एंड आपने कहा कि अभी तक आप दोनों ने एक भी लोन नहीं लिया है, हाँ, राइट? सो कैसे प्लान कर रहे हो आप लोग इन दोनों घर के लिए? टू बी ऑनेस्ट लोन लेना वाज वन ऑफ आवर प्लान्स, पर कितना अमाउंट लेना चाहिए वी हैवंट रियली थॉट थ्रू, बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी हैव प्लान्ड इज जो हमारे पास इनिशियल अमाउंट है दैट इज सफिशिएंट टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर 1 year or 2 years एटलीस्ट वी आर सॉर्टेड, और जो Got उसके it. बाद वाले अमाउंट्स है विल ट्राई टू टेक अ लोन फॉर दैट, तो वी हैव सम बफर टू थिंक अबाउट इट व्हाट लोन अमाउंट वी नीड टू टेक, या इफ वी वांट अगर मैनेज नहीं हो पा रहे तो क्या एक घर बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन. ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये जो दोनों घर के हैं उसमें से कितना अमाउंट पे कर दिया? क्योंकि आपने कहा कि अब हमें लोन्स लेने पड़ेंगे, राइट? तो आप लोग कितने कितने का लोन्स लेने का सोच रहे हो? जो मुंबई वाला घर है उसके लिए वी हैव ऑलरेडी पेड अराउंड 55, और बैंगलोर के लिए अभी कुछ पे नहीं किया है, दैट्स जस्ट लाइक बुकिंग अमाउंट दैट वी गिव मिनिमल लाइक 3 lakhs और समथिंग वैसा कुछ दिया. आपने 6 सालों में इतना अमाउंट सेव कैसे किया है? We actually work in an MNC that offers us stock options. We were able to accumulate that, and that sort of funded the major part of it. In both of our companies, we were getting these stocks. Yeah. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. मतलब अगर आपकी कंपनी आपको RSUs ऑफर कर रही है एंड इफ यू आर स्टे बियॉन्ड दैट वेस्टिंग पीरियड, वो जो हर साल का जो 10 लाख 12 लाख 15 लाख आता है उससे आपके घर बन सकते हैं, दो घर बन सकते हैं. दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग. सो वन एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग विद अ US कंपनी इज दैट योर फिक्स्ड कंपोनेंट इज नॉट द ओनली इनकम. इफ यू स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड आपको ऐसे बड़े बड़े चंक्स मिलेंगे. ठीक है, तो आपने मुंबई वाले घर के लिए 55L ऑलरेडी पे कर दिया है, और बाकी का जो अमाउंट है उसका आप कंफ्यूज जो कि लोन्स ले या जो भी सेविंग्स है उसमें से कितना इसमें डाले, या फिर अगर मैनेजेबल नहीं है तो क्या एक फिलहाल के लिए थोड़ा डिले करना चाहिए, वो सब चीज़. सबसे पहले चीज़ तो मैं अगर आपकी जगह होता और अगर मेरे पास पूरे 1.5 करोड़ रुपए होते घर खरीदने के, आई स्टिल वुड नॉट यूज पुट दैट अमाउंट टू बाय दैट हाउस बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी हाई. मान लीजिए 50 लाख रुपए का आपने घर खरीदा, आपकी देखो 50 लाख रुपए आप अगर गोल्ड में भी डाल रहे हो, 10 साल में उसकी अमाउंट एट 10% 11% इट विल रीच अराउंड 1.2 1.3 CR. होम लोन में होता है कि आप हर साल सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो, आप प्रिंसिपल भी पे ऑफ कर रहे हो. अगर दो चीजें मैं बता देता हूँ, अगर होम लोन 8% है, गोल्ड भी 8% दे रहा है, इन दी एंड द अमाउंट दैट यू पे टू योर होम लोन विल बी वे लोअर देन द अमाउंट दैट विल ग्रो विथ योर गोल्ड, बिकॉज आपको पूरा अमाउंट पे इंटरेस्ट कमा रहे हो. राइट, सो देर इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ यू आर यूजिंग ऑल योर सेविंग्स एंड नॉट टेकिंग अ लोन. अच्छा, आपके पास कितनी सेविंग्स है अभी जो डिस्पोजेबल है टोटल? आई थिंक मुझे सम अप करना पड़ेगा. आई थिंक कैश इन बैंक इज 4L, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ डेट फंड्स 45L, गोल्ड इज 7.3L, म्यूचुअल फंड्स 20 लाख, डायरेक्ट स्टॉक्स 13 लाख, US स्टॉक्स 2 लाख, RSUs 30 लाख. गोल्स बताइए, गोल 1 क्या है आपका? डेट फ्री घर. डेट फ्री बाय 10 years or so. I mean, yeah, that depends on the loan amount. Probably At the end of the day, 40 10 years. Yeah, 10 years. Goal 2, kids planning. Yeah. Goal 3, you guys have, constantly mentioned one particular term, IT. IT. Yeah. So is that an anxiety that your careers will be shortened because of all the ongoing technology? It is, to be very honest. जो भी AI से भी चल रहा है of course, and lots of things happening. Not just AI, but we don't know how to upskill. Of course, upskill तो करते रहते हैं, but we don't know how the job market would look like 5 years down the line. So we have to work towards it, but there is still that anxiety कि how do we make sure कि we are safe. Fair. And that's a very fair concern because बहुत सारे लोगों को 40s में ले ऑफ कर दिया जा रहा है, एंड देन दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स. सो एसेंशियली दे आर बीइंग फोर्स्ड ऑन टू रिटायरमेंट एट a very early age, like 40-42 is an age where most people, at least our parents, thought about savings for the first time in their 40s. Please, the world is changing very, very rapidly. You guys have to upskill. Everyone has to upskill आज के दिन में.
Okay, so goal 3, like you said, IT के वजह से थोड़ी uncertainty है, so you want to be financially independent, Yes. not retirement. Retirement is a different topic, but financial independence चाहिए, right? क्या एज तक चाहिए आपको, वो आपके दिमाग में है? तो हम लोग तो ऐसे ही मजाक मजाक में बोलते रहते थे लाइक 40 इज द आइडियल एज, बट वी नो थोड़ा कम फिजिबल नहीं है उतना. Probably we are okay with extending a bit, maybe 45. ठीक है, so my financial independence by 40. These are the 3 goals. अब आपको आपके पास 10 साल है एंड आपने कहा कि यू गाइज आर कंफर्टेबल विथ एन EMI ऑफ नॉट मोर देन 1.2 lakhs. Is that correct? Yes. If you are fine with 125 का EMI, then 1 crore is the maximum loan amount Oh. that you can take. If I look at this number and then if I look at the cost of the house, both the homes, तो फिर ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों चीजें एक साथ खरीदना हाँ. was a little bit early. Okay. The total outstanding between both the houses is 3.25 CR. अगर 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए हमें लेने पड़ेंगे अपने सेविंग से, which basically will deplete all your savings and more. बताइए, अब आप लोग बताइए क्या करना है इसमें. Like we have an option to क्या cancel घर कैंसिल? one of them, or maybe we can increase the EMI loan amount. 48 एक ऑप्शन है क्या, तो 40 का 45 45, हाँ. करे वो, या फिर तो है ही, वो ऑप्शन तो है ही, ऑफ कोर्स है. तो अगर वो ऑप्शन हम ले लेते हैं कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, तो फिर आपका 1.3 CR का आप लोन ले सकते हो. फर्क नहीं पड़ रहा है. तो जनरली जब भी पीपल कम एंड आस्क मी यू नो कि कितने का घर लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, 3 क्वेश्चंस मैं लोगों को बोलता हूँ और तीनों के आंसर्स येस होने चाहिए. फर्स्ट इज, डू वी नो हाउ आवर फैमिली विल लुक लाइक आफ्टर 5 years? Second question is, the cost of my desired house should not cross 5 times our annual income. And third is कि वही your EMI should be less than 35% or 40% of your income. अभी आपके केस में आप लोग 60L कमा रहे हो एंड द कॉस्ट ऑफ बोथ द हाउस मिला के 3.5 CR, तो वो ऑलरेडी क्रॉस हो रहा है. दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता नहीं है कि 5 साल बाद आपकी फैमिली कैसे दिखने वाली है, जिसके वजह से इनकम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है. द ओनली ऑप्शन हियर इज टू यू नो delay one of the purchases, like delay the Bangalore purchase maybe, but is that feasible? Feasible, like of course we could probably stay a little longer, rent pay, पर तो with the family they will come and stay maybe 5 years down the line with us. तो मतलब बैंगलोर का घर तो नॉन नेगोशिएबल ही है. Yes. एंड 60L आपकी मंथली इनकम है, 5 times ऑफ इट इज 3 CR, तो ये घर तो बजट में बैठ रहा है. अगर इस घर में के लिए हम लोग 1.5 CR का लोन ले ले तो 1.5 lakhs की EMI आ रही है, विच इज स्टिल नॉट अ स्ट्रेच. इट इज 30% ऑफ वॉट यू गाइज आर अर्निंग. जो दूसरा घर है बॉम्बे वाला, वो आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. आई हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हमेशा 1 करोड़ के घर के लिए कभी भी 3 लाख से ज़्यादा नहीं दिया है टोटल साल का, राइट? 3% का रेंटल यील्ड आता है. तो अगर सिर्फ और सिर्फ रेंट के लिए वो घर ले रहे हो, देन मे बी दैट परचेज कैन बी ऑफसेट. Yeah, we do have an option to like exit out of it if we want. 2-3 साल बाद, हाँ, जब भी like, उसका हाँ. लॉक इन पीरियड जब भी खत्म हो जाएगा, मे हाँ, आफ्टर द लॉक इन पीरियड हम उससे एग्जिट तो कर ही सकते हैं. फिर भी अभी सोल्यूशन नहीं है हमारे पास. द बैंगलोर हाउस की EMI इज नॉट स्टार्टिंग एनी टाइम सून. ओके. इसमें लाइक फर्स्ट टाइम पे कुछ डिपॉजिट देना पड़ेगा. आई थिंक इट्स अराउंड 20%, तो अराउंड 50 एक अपफ्रंट देना पड़ेगा. गेसिंग इट वुड कम इन 3 or 4 months आज के बाद. फिर उसके बाद वही इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ेगा फॉर जब भी घर तक बनेगा. आई थिंक इट्स 28 एंड या 29 यू कुड से 29 में मिलेगा घर. ठीक है. और उसके बाद 2028 इज व्हेन द फुल EMI किक्स इन, राइट? द फुल फ्लेजेड EMI किक्स इन. लाइक आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा 2027 के अराउंड. Yes, Yeah. sort of, yeah. तो फर्स्ट गोल ये भी है कि 50 लाख रुपए आपको निकालने हैं एंड उसके लिए जो आपने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स किए हैं Yes. 45L, Yeah. उस दैट इज ईयर मार्क्ड फॉर दैट डाउन Yeah, पेमेंट. उसके लिए Yeah. था वो. अब बचते हैं 2 CR. देन द ऑप्शन इज दैट EMI अमाउंट थोड़ा बड़ा को आप थोड़ा बढ़ाइए.
अब आप ये भी बताइए कि when are you guys planning to have a kid? Could be 3 years, you could say 3-4. ठीक है, 3-4 years. तो वो पहले 3 साल में क्या हम ये कर सकते हैं कि 1.5 लाख की EMI है, बट एवरी मंथ वी आर सेविंग अप 75,000 to 1 lakh एंड वी आर जस्ट अटैकिंग द प्रिंसिपल कि हर महीने या हर दूसरे महीने में जब भी पैसा बच रहा है उसमें 1-1 लाख रुपए डाल के उसका प्रिंसिपल क्लोज कर दे. For the first 3 years, so it's very easily possible. हाँ. 1.5 करोड़ का लोन 15 साल के लिए, आपकी नॉर्मल EMI आएगी 1.5L. इसमें अब हम टेबल देखेंगे कि पहले साल के एंड में अगर आपने नॉर्मली EMIs भर दिए तो आपका जो साल के एंड में जो टोटल लोन अमाउंट बैलेंस बचा होगा वो 1.45 CR है. अब इसमें हम साल के एंड में मान लीजिए 5 लाख रुपए डाल रहे हैं, फिर वो 1.39 हो गया, फिर 1.39 के बाद ईयर 2 में और 5 लाख का प्रिंसिपल जाएगा तो 1.34 हो जाएगा. उसके बाद 3 साल के एंड में द अमाउंट विल बिकम क्लोज टू 1.28 1.25 CR. अगर आप 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल रहे हो, योर लोन टेन्योर विल क्लोज बाय अ ईयर, रिड्यूस बाय अ ईयर, आई थिंक सो. उससे ज़्यादा नहीं होगा, ईयर और 2, राइट. तो एक्चुअल में अगर देखो कि पहले 3 साल में अगर बहुत ज़्यादा आपने डाल भी दिया, मतलब 15 लाख एक्स्ट्रा डाल भी दिए, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये 3 मैं आपको 3 बता देता सॉल्यूशंस, ठीक है. पहला सोल्यूशन ये है कि यू रिड्यूस योर टोटल लोन लायबिलिटी विच विल कम एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ डिसीजन कि मुंबई वाला घर चाहिए कि नहीं. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किड का जो गोल है वो थोड़ा और डिले कर दो, कि मान लीजिए एग्स फ्रीज करके 40 में बच्चे कर रहे हो और 10 साल आप एग्रेसिवली बीट करो, ठीक है, और अपना लोन फ्री हो जाओ. और तीसरा ऑप्शन ये है कि क्योंकि आप सेविंग्स रेट आपकी बहुत ज्यादा हाई है, तो वो जितना आप सेव कर रहे हो महीने का 4 लाख, उसमें से 2 लाख रुपए आपके होम लोन की तरफ जाए. अगर 2 लाख रुपए आपके होम लोन की तरफ जाएगा तो आपका ये लोन 10 साल में कंप्लीट हो सकता है. ये 3 ही ऑप्शन है. I think loan liability It is बढ़ाना bad. is fine. Yeah. Probably हम थोड़े ज्यादा कंजर्वेटिव साइड पे सोचते हैं. That's why we were like a little hesitant. इट इज वेरी रिस्की टू नॉट टेक एनी रिस्क एंड ऑलवेज वेट कि सेव करते रहो और फिर पे करो. आपको रिस्क लेना पड़ेगा. 1.5 लाख की EMI आपको लेना पड़ेगा इफ यू वांट टू ओन 2 होम्स इन बैंगलोर एंड बॉम्बे. सो आई थिंक वो तो कंक्लूजन हो गया है, राइट, कि 1.5 करोड़ का आपको लोन लेना पड़ेगा. उसके लिए 1.5 लाख की आपकी EMI है. 15 साल में यू विल बी डेट फ्री. तो अभी आपके जो टोटल मंथली एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग द एनुअल वेकेशंस, आपके 1,65,000 जितना स्पेंड हो रहा है. इसे हम मिसलेनियस वगैरह जोड़ के मिसलेनियस 2,000 को हम कर देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं. 1,75,000 इज द अपर एंड ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस. इज दैट करेक्ट टू से? Yeah, absolutely. Which means that we are now left with 3,25,000 for all our financial goals. Yeah. सबसे पहली चीज, आप डेट फंड में 45 lakhs आपने ऑलरेडी सेव अप कर लिया है और 5 लाख जितना सेव करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस, बैंगलोर होम. नेक्स्ट अब बचे कितने आपके? 2 lakhs बचे, ठीक है. बाकी गोल्स क्या है? प्री नीटल एक्सपेंसेस एंड चाइल्ड बर्थ 3 lakhs. आई डोंट थिंक उसके लिए आपको एडिशनली कुछ प्लान करने की जरूरत है, वो आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है. तो अब जो महीने के 2 लाख रुपए बचते हैं वो आपका जाएगा 2 गोल्स के लिए. एक तो गोल है डेट फ्री बाय 45 और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम. नाउ यू हैव एटलीस्ट 15 years टूवर्ड्स दिस गोल. 15 साल है आपके पास इस गोल के लिए. सो यू कैन टेक मोर रिस्क, राइट. An ideal long-term portfolio will have these components. आपने पहले से कह दिया स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, so we will take the passive route of mutual funds. 20% in gold via gold ETFs. US कंपनीज में 10% आप डाल सकते हो via ETFs. करीब 50 to 60% in Nifty 50 and Nifty Next 50 index funds. और 10% each in mid cap and small cap. Okay. If you continue this, you can expect a return of 14 to 15% for a period of 15 years at least. And that will change the way your goals look like, right? Investment period is 15 years. Expected annual returns is 14%. The amount is 11.3 CR. अब इसमें caveat है. इसमें caveat ये है
कि 3 साल बाद आप शायद 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाओ, आप 1 लाख कर पाओगे, राइट, क्योंकि ईएमआई भी आ रही है। तो 3 साल बाद आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 88.7 लैक्स। ये 88.7 लैक्स फिर मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा फॉर 12 ईयर्स। दिस बिकम्स 4.27 CR 15 साल बाद, और जो बाकी का जो 1 लाख रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर 12 ईयर्स, उसकी वैल्यू इज 3.5 CR। तो 3.5 CR प्लस 4.27 CR, तो 45 की एज में आपके पास 7.5 करोड़ रुपए होंगे। नाउ योर क्वेश्चन विल बी, इज 7.5 करोड़ इनफ? 45 की एज तक आपका होम लोन पे ऑफ हो जाएगा। अब आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है अभी 1 लाख है, बट ऑफ कोर्स आगे जाके जब बच्चा होगा इसे हम डबल कर देते हैं आज के दिन ही, कि मान लीजिए 2 लाख हो गया, राइट? तो आपके एनुअल एक्सपेंसेस होंगे करीब 24 लाख एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड। एवरी ईयर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टू मैच अप विद द इन्फ्लेशन। तो आपका ओवरऑल पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम ये वाला टूल यूज करेंगे, हमारा खुद का टूल है ये। दिस इज द रिटायरमेंट कंपस, ठीक है? योर करंट एज 30, expected retirement age 50, Yeah. life expectancy 80, let's be on the optimistic side. What are your current savings? बताइए। equity में कितना है? RSUs plus mutual funds, direct stock, सब कुछ, उसमें 63 lakhs है, right? Yeah. gold में कितना है? 7 7 lakhs. lakhs. अब current annual income आपका है 60L। पैसिव इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, वो जो बॉम्बे का घर बनेगा, व्हाट इज द रेंट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग? 30,000 per month probably. 30,000 per month, तो 50,000 by the time you retire. करंट एनुअल एक्सपेंसेस आपके है 12 लाख, तो उसे हम 24 लाख कर देंगे, just to be on the conservative side. Now, at the age of 50, a lot of your expenses will already be taken care of, right? 50 की एज तक आते आते आपके बच्चे की स्कूल की एजुकेशन शायद खत्म हो जाएगी, आपका घर वगैरह बन चुका होगा, ओके? तो इसीलिए हमने ये देखा है कि 50% लाइफस्टाइल मेंटेन करने में भी आपको सेम लाइफ मिलेगी। आपके केस में हम कंजर्वेटिव ले लेते हैं, हम करते हैं कि you will be spending 70% of what you spend right now, inflation adjusted। मतलब 2 लाख अगर आ जाए, वो 2 लाख इन्फ्लेशन एडजस्टेड आफ्टर 20 ईयर्स, उसका 70% आप स्पेंड करोगे। सो बेस्ड ऑन दीज नंबर्स, द मैक्सिमम अपर एंड, लाइक एकदम कंजर्वेटिव लेके भी, यू नीड अ टोटल ऑफ 9 to 10 CR if you want to completely stop working and only rely on your savings to generate your day-to-day living expenses. 10 CR, and this also includes like 1 crore earmarked for your kids' education. Yeah. By 50. By 50. And इसमें एक caveat है कि this 1 lakh will also increase over time because your income should increase for some till the age of 40. थोड़ा थोड़ा ही इंक्रीज होगा, बट होगा तो जरूर, राइट? तो जो 1 लाख है वो अभी हमने स्टेडी मंथली इन्वेस्टमेंट फिगर रखा है। इसी को अगर हम लेट्स से हर साल 5% से बढ़ा दें, आपने पहले साल कितना डाला? आपने पहले साल डाला 1 लाख, ओके? अब वो 1 लाख को 1 साल बाद वो बन गया आपका 1,05,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? इफ वी कंटिन्यू इट 12 साल के लिए कि टिल द एज ऑफ 45, और हर साल अगर हम 5% से इसे बढ़ाते तो 4.58 CR हो रहा है। अगर हम 12 साल के बदले 17 साल कर दे, मतलब 50 की उम्र तक, तो फिर ये अमाउंट ही बन गया 10 करोड़ 90 लाख। दिस इज वन, ओके? और जो बाकी का जो अमाउंट था, जो 4.27 CR है, इफ वी इन्वेस्ट दिस अमाउंट फॉर 17 ईयर्स, देन दिस बिकम्स 8.22 CR। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। 2 चीजें, 2 बड़े फैक्टर्स इम्पैक्टिंग योर पोर्टफोलियोज फ्यूचर। वन इज द इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा systematically increasing the monthly amount as and when your income sees an increase. Yeah. तो अभी आज के प्लान के हिसाब से अगर आप हर महीने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो फॉर द नेक्स्ट 3 years, और उसके बाद अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 45 की एज में, यू विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो कॉर्पस ऑफ 7.5 CR। उसी अमाउंट को अगर आप हर साल 5% से बढ़ाते हो तो 45 तक दैट अमाउंट विल बिकम क्लोज टू 8.8 करोड़। और अगर आप 50 की उम्र तक ये करते हो,
then your portfolio will be close to 18 to 19 CR. That's all for today's video, guys. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for being a part of Fix Your Finance. It's always a pleasure to meet people who are serious about their finances, who have goals, who have the discipline. And I'm sure आपकी स्टोरी सुन के बहुत सारे लोग भी सेव करने के लिए मोटिवेट होंगे. Thank you, Anshuman, so much. Thank you. Check out Axis Max Life Insurance. The link is in the description and get your term insurance क्योंकि अब भरोसा हो गया डबल.